Hello and welcome back everyone. In the previous lecture we have started with the second chapter of OCM, that is Organization of Commerce and Management, and the chapter was Functions of Management, where we tried to understand the different functions of management in brief. After that we have started with the planning. Correct? Planning is the first and foremost function of management. Planning to some extent tries to bridges the gap between your present and the future. Correct? Over there we tried to understand the planning in depth with the help of few definitions and the meaning of planning. So here in today's lecture we're going to discuss about the importance of planning, why planning is needed and why it is so important, with the help of few points. Now planning gives a layout regarding where you want to see your organization in future. करेक्ट है, आप कहाँ देखना चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्यूचर, इसका लेआउट आपको कौन प्रोवाइड करता है? प्लानिंग. एंड इन ऑर्डर टू बी ओवर देयर, जो आपने प्लान किया है जहाँ आपको पहुँचना है, करेक्ट है. सो इन ऑर्डर टू बी ओवर देयर व्हाट प्रोसीजर्स यू आर गोइंग टू ऑप्ट, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, क्या एक्टिविटीज इम्प्लीमेंट करेंगे. दिस प्रोसीजर शुड बी सिलेक्टेड, ये जो प्रोसीजर है, ये जो आपका रास्ता है, ठीक है, जिसको आप ऑप्ट करने वाले हो, दिस प्रोसीजर शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर प्रॉपरली स्कैनिंग दी ऑल पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट इन टू द बिजनेस एनवायरमेंट. करेक्ट है. And also by accurately forecasting the coming future, by taking into the consideration all possible elements. Now elements like the market condition, competitors policy, creditors intentions, customers preferences, and the government rules and regulations regarding to pertaining to your kind of business. There are n number of elements into the business environment which you'll have to take into the consideration at the time of planning the activities and the planning the procedures for the organization. Now by properly forecasting the future, by properly scanning the all possible opportunities, by taking into consideration all elements, it will going to help you out to reduce the risk. It will going to help you out to reduce the risk of exposing the business to the uncertain future. रिस्क रहेगा बिजनेस में, हमेशा रहता है, लेकिन अगर आप अपने एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ को ऑन टाइम ग्रैब करते हो, थ्रेट्स को ऑन टाइम आइडेंटिफाई करके यू टेक द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट, और यू ट्राई टू कन्वर्ट योर थ्रेट्स इनटू योर अपॉर्चुनिटीज़. करेक्ट है. और ये पॉसिबल होता है जब आप प्रॉपरली अपने फ्यूचर को फोरकास्ट करते हो, एक्टिविटीज़ को प्लान करते हो. करेक्ट. सो प्लानिंग helps you out to reach to your future destination in a smoother and easier way. So today we're going to start, or we will going to understand the importance of planning with a few points. And the very first point is it helps to set the clear objective. It helps to set the clear objective. Now goals and objective, clear goals and objective. Before we decide onto the course of action that has to be undertaken into the organization, करेक्ट है, आप क्या करोगे, कैसे करोगे, इन सारी चीज़ों पे डिसीजन लेने के पहले सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना. एंड इन ऑर्डर टू अचीव दोज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हम क्या करते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन प्लान करते हैं. राइट. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट थिंग इज you have to set out the organizational goals and objective, because until and unless you have set out a goal and the objective, right, how you are going to formulate a course of action that has to be undertaken. correct है. हम जब भी course of action formulate करते हैं, correct है, हम जब भी plan prepare करते हैं तो वो plan या वो course of action help करता है, help us to reach out to our destination, that is our goals and ultimate aim क्या है, आपका objective क्या है, उसको achieve करने में help करता है. तो सबसे पहली चीज़ जो आप करते हो in any kind of organization, करेक्ट है, नो मैटर वॉट एवर बी द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर बी द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है, सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं वो हम करते हैं, हम अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं. इनको डिटरमाइन करने में हमें कौन हेल्प प्रोवाइड करता है? प्लानिंग. सो वी कैन से दैट द प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम क्या करें? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करें. सो until and unless you have set out a goals and objective, how you are going to formulate a course of action that has to be undertaken. So first of all, specific goals are to be defined which are to be achieved by the organization. Now this clear goal, वो organization जहाँ पे goals and objectives clearly set out होते हैं, ठीक
Okay, over there it helps the manager to analyze the present situation, present condition of the organization, and on that basis आपके पास clear cut goals and objective हैं, करेक्ट है. आपने बेस्ड ऑन दोज ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट कंडीशन को एनालाइज कर लिया है, और ऑन दैट बेसिस द मैनेजर विल गोइंग टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इनटू द फ्यूचर, वेयर यू वांट टू सी ऑर्गेनाइजेशन इनटू द फ्यूचर. वहाँ तक पहुँचने में आपके क्लियर कट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, मैनेजर्स को हेल्प प्रोवाइड करेंगे. सो प्लानिंग स्टार्ट होती है विथ सेटिंग दी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को सेट करना, करेक्ट है. सो प्लानिंग हेल्प्स टू सेट दी क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स दी path of action. Planning provides the path of action. It provides a path of action, correct है. Under planning, first and foremost thing that our manager is going to do is setting the clear goals and objective. Importance of planning का first point हमने देखा. So a proper plan, a well defined, a clear plans and objective always gives a proper direction for the achievement towards the desired goal. अगर आपके plans clear हैं, हमने पहले भी देखा था well plan is half done, करेक्ट है. अगर प्लानिंग आपकी 100% एक्यूरेट है, जहाँ पे आपने सारे पॉसिबल एलिमेंट्स को कंसीडर किया है, एनवायरनमेंट को स्कैन किया है, फ्यूचर को प्रॉपर्ली फोरकास्ट किया, तो आपका आधा काम वहीं हो जाता है, करेक्ट. अगर आपका प्लानिंग फुल प्रूफ है तो उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ श्योर करनी होती है, दैट इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ राइट वे, राइट मैनर, करेक्ट है. सो अ प्रॉपर प्लान ऑलवेज गिव्स अ प्रॉपर डायरेक्शन फॉर द अचीवमेंट टुवर्ड्स द डिजायर्ड गोल्स. दे एक्ट एज अ गाइड so that the right work can be done at the right time in a right way to get the right result. ये जो आपके plans होते हैं ये guide करते हैं आपके manager को. They shows a path to the manager, correct है. क्या कब कहाँ कैसे करना है, कौन करेगा. So it becomes a guide, so that with the help of that particular guide, with the help of that particular plan, managers make sure कि right काम right time पे right way में with the proper results क्या हो सके, implement हो सके. It helps the employees to understand what the organization want from them, करेक्ट है. क्योंकि गोल्स प्री डिटरमाइंड होते हैं तो एम्प्लॉयज़ को पहले से ही पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को उनसे क्या चाहिए, एंड व्हाट दे शुड डू टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दी अटेनमेंट ऑफ दी ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन. ये समझने में, ये अंडरस्टैंड करने में उनकी हेल्प कौन करता है, प्लानिंग करती है, क्लियर कट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स करते हैं. इट हेल्प्स देम टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ इन अ स्मूथ एंड सिस्टमैटिक मैनर, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अ कोर्स ऑफ एक्शन होता है इन देयर हैंड. उनको बस वो पाथ क्या करना होता है, फॉलो करना होता है. प्लानिंग उनको एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड कर देती है. नाउ व्हाट यू वांट टू डू, आपको सिर्फ मैप को देख के आगे बढ़ते रहना है, ठीक है. जैसे आपका गूगल मैप होता है, आपको डायरेक्ट करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आप इजीली अपने डेस्टिनेशन पे एन नंबर ऑफ टाइम्स, यस एक्सेप्शंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है. सो आप इजीली अपने डेस्टिनेशन पे अराइव हो जाते हो. आपको रास्ते याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट है, राइट है, यू टर्न है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, करेक्ट है. इन द सेम वे प्लानिंग क्या करता है, आपको पाथ ऑफ एक्शन, जैसे आप इन द ट्रैवलिंग गूगल मैप आपके साथ होता है, इन द सेम वे बिजनेस में हर एम्प्लॉय के साथ क्या होता है, प्लानिंग उसके साथ होती है. प्लानिंग उसको कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड करके, प्लानिंग उसको राइट पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती है, जिसके हेल्प से या जिसको फॉलो करते हुए हर एम्प्लॉय टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अपना कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव मैनर में दे पाता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इम्प्रूव्स दी परफॉर्मेंस. प्लानिंग क्या करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. नाउ प्लानिंग ब्रिंग्स दी ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नीडेड इनटू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है. अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ जो 9 to 6 का वर्किंग आवर है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ आ रहा है 10 बजे, एम्प्लॉय आपका 10 बजे आ रहा है, उसके बाद 1 घंटा वो सेटल आउट होने में ले रहा है, उसके बाद जहाँ आधे घंटे का लंच ब्रेक होना चाहिए वहाँ 2 घंटे तक लंच ब्रेक ही चल रहा है. व्हाट दे आर डूइंग, वो काम कब करेंगे, करेक्ट है. आप उनको पगार किस चीज़ की दे रहे हैं, करेक्ट. सो ऑर्डर और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में कौन लाता है, प्लानिंग लाती है. एम्प्लॉयज़ कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दी टाइमली गाइडलाइंस. एम्प्लॉयज़ को टाइमली गाइडलाइंस टाइम दिया जाता है, और विद इन दैट टाइम उनको क्या दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है जो उनको अचीव करना होता है बाय फॉलोइंग दी प्रॉपर गाइडलाइंस, ठीक है. आपको गाइडलाइंस दे दी गई हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब बता दिया गया. अब आपको टाइम रेस्ट्रिक्शन दिया जाएगा.
आपको उतने ही टाइम पीरियड में अपना वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जॉब, वो पर्टिकुलर टास्क क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा. सो वेस्टेज ऑफ टाइम यहाँ पे नहीं होगा. एंड दे कैन नो इन एडवांस, एम्प्लॉयज़ को पहले से पता होता है, जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया इन दी पाथ ऑफ एक्शन, दैट दे नो इन एडवांस दैट एज टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम. ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है एंड हाउ टू अचीव दैट. उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कैसे करना है, क्योंकि प्लानिंग ने उनको ऑलरेडी क्या प्रोवाइड कर दिया है, पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड किया है. दिस हेल्प्स देम टू ब्रिंग इन द बेस्ट इन द परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन. विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, जब आपके पास क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब आपको पता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और उस एक्सपेक्टेशंस को आप कैसे अचीव कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो, इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस एंड सिनेरियो हर एम्प्लॉय अपना क्या देता है, बेस्ट देता है, 100% परफॉर्मेंस देता है. करेक्ट है. और जब हर एम्प्लॉय अपना 100% परफॉर्मेंस दे रहा है, सबके पास सबके क्लियर कट गोल्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट सेट होगा, which in turn definitely is going to boost the confidence of the employees, it will going to raise their morale, and it will also going to increase their efficiency. And all this thing, the raised confidence, morale and the efficiencies of the employees are definitely going to result into the higher profitability of the organization. अगर आपका एम्प्लॉय क्या है, एफिशिएंट है, अगर आपका एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट है, 100% लॉयल एंड डेडिकेटिव है टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ब्रिक बाय ब्रिक आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता जाएगा. करेक्ट है. सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट मिनिमाइजेज द रिस्क फिर से आ गया यार. बिजनेस की बात कर रहे हो यार आप, बिजनेस जहाँ पे है वहाँ पे रिस्क रहेगा ही. ठीक है, बिजनेस जहाँ पे है वहाँ पे रिस्क रहेगा ही रहेगा. दोनों क्या है, बिजनेस एंड रिस्क आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. करेक्ट है, हेड एंड टेल्स. बिजनेस है तो रिस्क होगा ही, बिना रिस्क के कोई बिजनेस होता नहीं है भाई मेरे. ठीक है. सो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग. जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं आने वाले फ्यूचर को. प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग वेयर वी फोरकास्ट द कमिंग फ्यूचर. कमिंग फ्यूचर मतलब क्या क्या फोरकास्ट करते हो आप, मार्केट कंडीशन कैसा होगा, आपके काइंड ऑफ बिजनेस के लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा. करेक्ट है. कॉम्पिटिटर्स की क्या पॉलिसीज़ होंगी, वो क्या चेंजेस करेंगे, अकॉर्डिंगली आप उनसे एक स्टेप आगे रहो. क्या टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे, जिस तरीके की मशीनरी से आप डील कर रहे हो या जिस तरीके के प्रोडक्ट से आप डील कर रहे हो, टेक्नोलॉजी वाइज उसमें क्या चेंजेस आएंगे. गवर्नमेंट क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करेगी, या क्या चीज़ें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में आपके फेवर में आएंगी या नहीं आएंगी. इन सारी चीज़ों को एक्यूरेटली फोरकास्ट करने के बाद ही हम क्या करते हैं, प्लान्स चॉक आउट करते हैं. करेक्ट है. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रोसेस. प्लानिंग की जब हम बात करें सो हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ अ प्रोसेस विच वी टेक अ पीप इन टू द फ्यूचर. ठीक है, हम अपने फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में झांकते हैं. करेक्ट है. वी टेक अ पीप इन टू द फ्यूचर एंड ट्राई टू फोकस द फ्यूचर चेंजेस. हम अपने फ्यूचर में झांकते हैं और फ्यूचर में होने वाले चेंजेस का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं. वी टेक अ पीप इन टू द फ्यूचर एंड वी ट्राई टू फोकस द changes which are going to be happen into the coming future. Now this changes or the risk, वो जो भी चेंज होने वाला है या जो भी रिस्क है, ठीक है, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते फ्रॉम द बिजनेस. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि रिस्क जो होता है इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस ओनली. तो आप इसको 100% कम्प्लीटली अवॉइड, इग्नोर, एलिमिनेट नहीं कर सकते हो. करेक्ट है. बट बाय एंटिसिपेटिंग देम, उनका सही अंदाज़ा लगा के, यू कैन टैकल दैम विद द प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. पर अगर आप अंदाज़ा लगा लो कि फ्यूचर में मेरा बिजनेस इस तरीके के रिस्क से एक्सपोज होने वाला है, या टेक एन एग्जांपल, आप जीन्स मैन्युफैक्चर करते हो. करेक्ट है. पहले फेडेड जीन्स बहुत चलती थी. मैं बात करूँ कुछ 20-25 ईयर्स बैक की. फेडेड जीन्स का पैटर्न था, स्ट्रेट पैंट्स होती थी विद अ पैचेस ऑन दी पैंट्स, कहीं डार्क पैच कहीं लाइट पैच. करेक्ट है, वो चलती थी. सो इन दैट बिजनेस अगर एंटरप्रेन्योर ने प्रॉपरली फोकास्ट, वो एंटरप्रेन्योर्स जो जींस में डील करते थे, जिन्होंने प्रॉपरली फोकास्ट कर लिया कि कमिंग फ्यूचर में कस्टमर्स प्रेफरेंसेस कम्प्लीटली चेंज होने वाली. नाउ डेज आपको कैसी पैंट्स टिल दी एंकल चाहिए होती हैं, स्ट्रेट फिट चाहिए होता है आपको. ठीक है,
जहाँ पे पैचेस लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ओल्ड फैशन हो गया, बहुत ज़्यादा टैकी फैशन हो जाता है वो। तो वो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने ये चेंज विच इज़ गोइंग टू बी हैपन इनटू द कस्टमर्स प्रेफरेंसेस, इसको प्रॉपरली फोरकास्ट कर लिया था जिन्होंने, वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं विद अ हायर प्रॉफिटेबिलिटी, करेक्ट है। सो रिस्क को आप हटा नहीं सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो, बट अगर आप उसको प्रॉपरली फोरकास्ट कर लो, उसका सही अंदाज़ा लगा लो, तो बाय टेकिंग द प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स, करेक्ट है, आप उसके इम्पैक्ट को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, आप उस सिचुएशन को बेस्ट पॉसिबल वे में टैकल आउट कर सकते हो, फेस आउट कर सकते हो। सो बाय फोरकास्टिंग द फ्यूचर वी डिसाइड इन एडवांस that what are the tasks will be performing in the future, आप कैसे टास्क, कौन सी एक्टिविटीज फ्यूचर में परफॉर्म करोगे। एंड प्लानिंग शोज द वेज, आप जब फोरकास्ट करते हो फ्यूचर को, करेक्ट है, जब आप फ्यूचर को फोरकास्ट करते हो तो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो यार ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, अगर मैंने आज से पढ़ाई नहीं की तो मे बी इन द एकेडमिक ईयर लेट हो गया तो लेट बाय लेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, करेक्ट है। सो इफ़ आई डोंट स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ डे, फ्रॉम टुडे ओनली, मुझे क्या करना होगा, कमिंग फ्यूचर में एग्जाम्स के 2-3 महीने पहले मेरे ऊपर स्टडीज़ का बर्डन बढ़ जाएगा, करेक्ट है, ये आपने प्रॉपरली फोरकास्ट कर लिया। आफ्टर फोरकास्टिंग आपने पहले से ही डिसाइड कर दिया यार मुझे उस टाइम पे वो प्रॉब्लम, एग्जाम के पहले प्रेशर तो सबको रहता है, कितना भी इंटेलिजेंट, कितना भी स्कॉलर बच्चा क्यों हो, प्रेशर सबको रहता है, करेक्ट है, लेकिन जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। सो आपने डिसाइड किया कि मेरे को एग्जाम के पहले भैया इतना टेंशन नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू फेस सच काइंड ऑफ प्रेशर, इतना ज़्यादा वाला प्रेशर। सो आपने पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर लिया कि आप क्या करोगे, वॉट आर द टास्क यू विल गोइंग टू परफॉर्म इन द फ्यूचर, आप कल परसों या आने वाले कुछ महीनों में कैसे अपनी स्टडीज़ को कोप अप करोगे, करेक्ट है, कैसे अपने सिलेबस को कोप अप करोगे विद ऑल सब्जेक्ट्स, करेक्ट है। अब आपने वो डिसाइड तो कर लिया, बट प्रॉपर प्लानिंग शोज द वेज टू डील विद द चेंजेस एंड अनसर्टेनिटी विच विल बी फेसिंग ओवर देयर। लेकिन इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए आपने सेट कर लिया कि भैया एग्जाम के 2 महीने पहले मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, कैसे होगा, इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होगी ना। दिवाली आने वाली है, गणपति आने वाली है, रक्षाबंधन होगा, भाई बहन आएंगे, वो आधा दिन ऐसे ही चला जाएगा, करेक्ट है। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली स्कैन करके, सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली स्कैन करके आप एक प्लान चॉकआउट करोगे कि आप हर दिन कितने घंटे पढ़ोगे, वो टाइम कौन सा होगा, आप ऐसा टाइम सिलेक्ट करोगे जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उतना पूरा टाइम आपको सिर्फ अपने स्टडीज़ के टूवर्ड्स आप डेडिकेट कर पाओगे, जहाँ पे फैमिली डिस्टर्बेंस नहीं होगा, सराउंडिंग्स एकदम क्वाइट होंगी, करेक्ट है। इधर आप अर्ली मॉर्निंग का शेड्यूल चॉकआउट करते हो या आप आफ्टरनून का शेड्यूल लेते हो, कुछ लोग होते हैं जिनको रात को पढ़ना पसंद होता है तो वो रात का शेड्यूल चॉकआउट करेंगे, करेक्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर्स एंड फेस्टिवल्स एंड द सेलिब्रेशन दैट आर गोइंग टू हैपन इन टू योर फैमिली। हर चीज़ को प्रॉपरली कंसीडर करने के बाद आप एक प्लान चॉकआउट करते हो। तो बेसिकली आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट द प्लानिंग जो होती है वो आपको क्या दिखाती है, रास्ता दिखाती है। फ्यूचर फोरकास्ट करने के बाद जो एक्टिविटीज़ आप सोच रहे हो परफॉर्म करने के लिए, उनको बेस्ट पॉसिबल वे में परफॉर्म करने का रास्ता आपको कौन बताता है, प्लानिंग बताता है, जिसके हेल्प से सो वी कैन से दैट द प्लानिंग मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ द फ्यूचर एंड अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द फ्यूचर। सो अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हो तो फ्यूचर में आने वाले रिस्क को आप अवॉइड, इग्नोर नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके इम्पैक्ट को आप डेफिनेटली कम कर दोगे। सो प्लानिंग मिनिमाइजेज द रिस्क। नाउ planning leads to optimum utilization of resources. Now when we talk about resources in terms of human resources, in terms of raw material, in terms of machineries, in terms of capital, in terms of piece of land which you are using, correct है, ये सब चीज़ें आपके resources में आती हैं जब हम business की बात करते हैं। इन सब resources को to the fullest extent best possible way में utilize करना, ठीक है, ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, करेक्ट। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। आप प्लान करने के पहले आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और कितने क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो क्या क्वालिटी है आपके पास, जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है उसकी क्या क्वालिटी है, कितना रॉ मटेरियल आपके पास एट प्रेजेंट है इन योर हैंड, और इन फ्यूचर हाउ मच यू आर केपेबल इनफ टू परचेज दी रॉ मटेरियल, आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
by taking into consideration the availability of resources, correct है, and effective planning leads to proper allocation of resources for various activities, करेक्ट है। अगर आपकी प्लानिंग इफेक्टिव है, जहाँ पे आपने प्लानिंग करने से पहले सारे रिसोर्सेज को कंसीडर किया था, उनकी अवेलेबिलिटी को कंसीडर किया था, सो आपकी प्लानिंग क्या करेगी, इट विल गोइंग टू लीड टू दी प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप हर रिसोर्सेज को प्रॉपरली विद ड्यू केयर क्या करोगे, एलोकेट करोगे इन द डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर वेरियस एक्टिविटीज, करेक्ट है। इफेक्टिव प्लानिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन to utilize the availability of resources to the fullest extent। अगर आपकी प्लानिंग इफेक्टिव है तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट कि आप अवेलेबल रिसोर्सेज को क्या करो, फुल एक्सटेंट तक यूटिलाइज करो, विच ब्रिंग्स दी हाई एफिशिएंसी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी इम्प्रोवाइज होती है। इफ़ यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे एज शोन इनटू द डायग्राम, इट विल लीड टुवर्ड्स द इंक्रीज इन द इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क विच योर लेबर फोर्स इज डिलीवरिंग, करेक्ट है। It will going to give you the better results. It will also help to minimize the wastage कम होगा, इकोनॉमिकली आपका प्रोडक्ट क्या होगा, और ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा, उसके प्राइसेस कम होंगे, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, करेक्ट है। सो द वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर प्लानिंग। सो प्लानिंग optimizes the utilization of the available resources to the fullest extent. Now the next point that planning helps in decision making। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बेचारा जो मैनेजर होता है, ठीक है, उसका काम होता है डिसीजंस लेना। उसका काम क्या होता है, डिसीजन लेना, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है डिसीजन लेना। बोलने में सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आपको डिसीजन लेना होता है, जब आपकी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए और डिसीजन के लिए जनरेट होती है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट है, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क होता है मैनेजर्स का। परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटीज़ में सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो होता है वो होता है डिसीजन लेना। जैसे कि हम फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं, बेचारा मैनेजर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। क्यों? क्योंकि उसके पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप देख रहे हैं उसके दिमाग में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक सिंगल प्लान को अप्रोच करने के लिए। नाउ अ मैनेजर विल हैव टू डिसाइड कौन से प्लान को यस बोलना है और कौन से प्लान को नो। तो इसके लिए वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, सारे ऑप्शंस को क्या करेगा, डिटेल में स्टडी करेगा, उनके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस स्टडी करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, एज शोन इन द सेकंड डायग्राम, प्रॉपर डिसीजन लेगा कि कौन से ऑप्शन को यस बोलना है, कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करना है, और वो कौन से बंडल ऑफ ऑप्शंस हैं जिनके हेल्प से आप अपना टास्क कंप्लीट तो कर पाओगे लेकिन उतने ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में नहीं। तो हम उन बंडल ऑफ ऑप्शंस को क्या बोलेंगे, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय, दैट मीन्स नो। सो डिसीजन मेकिंग में हमारा मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से ऑप्शंस को ऑप्ट करके वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। डिसीजन मेकिंग इज एन इंटीग्रल एंड इंसेपरेबल पार्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हो, करेक्ट है। उसके बाद आप डिसीजंस लेना स्टार्ट करते हो कि इस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन से तरीके का लेबर फोर्स चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ से लेना, हर स्टेप पे आपको क्या लेना होता है, डिसीजन लेना होता है। सो डिसीजन की जब बात करते हैं तो ये इंटीग्रल और इनसेपरेबल पार्ट होता है हमारे प्लानिंग का, जिसको आप कभी निकाल नहीं सकते। There are various alternatives available in front of the management. Management के पास n number of alternatives available होते हैं in order to approach a single problem, ठीक है, और a single task. So यहाँ पे आता है हमारा प्लानिंग। जैसे हिंदी पिक्चर में हीरो की एंट्री होती है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू चूज द बेस्ट ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन दी प्री डिफाइंड गोल्स। हमने गोल्स क्या किए हैं, पहले से ही डिफाइन कर लिए हैं, करेक्ट है। हमारे गोल्स क्या है, प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या था, गोल्स को डिटरमाइन करना, तो हमने गोल्स को पहले से ही डिटरमाइन कर लिया। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंसिडरिंग द प्री डिफाइंड गोल एंड ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, मेरे को 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करना है लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 यूनिट का ही रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, कैसे अचीव करोगे अपना गोल, पॉसिबल नहीं है ना। तो अवेलेबल रिसोर्सेज को और प्री डिटरमाइंड गोल को कंसीडर करते हुए प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना, करेक्ट है। इट हेल्प्स द मैनेजर टू कंसीडर ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, सही गलत रिजल्ट्स ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन। जितने ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आपको लगता है कि जिनके हेल्प से आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे,
यार मैं लास्ट के 2 महीने में भी पढ़ के पास हो सकती हूँ, आई एम केपेबल इनफ फॉर दैट, मेरा पोटेंशियल उतना है। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपको सिर्फ पास होना है? नहीं ना। अलॉन्ग विद गेटिंग पास, योर गोल इज टू स्कोर गुड परसेंटेज, करेक्ट है? तो 2 महीने में पढ़ के भी पास हो जाओगे, लेकिन अगर अभी से पढ़ाई शुरू कर दोगे तो परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे, करेक्ट है? सो ऑप्शन बहुत सारे हैं, अब उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट है? अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया कि नहीं भैया हमको तो सिर्फ पास होना है, बस पास होके निकल जाओ किसी तरह, हाँ तो ठीक है, फिर आप लास्ट के 2 महीने में पढ़ के पास हो जाना, करेक्ट है? सो जो आपने गोल डिटरमाइन किया, अच्छा पढ़ना है, परसेंटेज भी स्कोर करना, पर सिलेबस ही नहीं आया। नोटिस किया आपने, इस बार सिलेबस बहुत लेट आया था हमारा, बिकॉज हमारे पास रिवाइज न्यू पोर्शन था, सिलेबस ही लेट आया, फिर ड्यू टू कोरोना वायरस पढ़ाई लेट स्टार्ट हुई, करेक्ट है? तो इन सारी चीज़ों को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्या कंडीशन है एनवायरनमेंट की, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद आपको अपने गोल को, आपने जो गोल डिटरमाइन किया उसको कंसीडर करने के बाद क्या करना है, प्रॉपरली डिसाइड करना है, और प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। सबके हर ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स को स्टडी करने के बाद, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज को स्टडी करने के बाद, देन यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू कम अप विद द वन बेस्ट वे, जिसको ऑप्ट करके आप क्या करोगे, अपना फाइनल गोल अचीव कर पाओगे। सेम वे हमारा मैनेजर करता है। Manager considers the all positive and negative result of the available options, and even and then he decides and come up with the one best way. So planning helps the manager to take the rational decision without being biased, by scanning and considering all options available in the business environment, depending upon the organization's predetermined goals and resources that the organization have in their hand. Correct? Now the next point is Sony गए ना. Next point is planning is useful in setting the standards for controlling. Controlling होता क्या है? Controlling होता क्या है? यहाँ पे आप देखते हो कि एक्टिविटीज राइट मैनर में इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही है. So planning set the standards for controlling. Planning helps the manager to compare the actual performance with the standard one and find out the deviations if any. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि प्लानिंग में हमारे पास क्या होता है, प्री डिटरमाइंड गोल होता है. हमने पहले से तय किया होता है कि क्या हमको अचीव करना है, और उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में प्लानिंग करते हैं. जो आपको अचीव करना है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मैनेजर के पास स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, कि मैं ये पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन इम्प्लीमेंट करूँगा तो आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू बी हियर. आपके पास ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है. अब आप उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या करते हो, कंपेयर करते हो. आपको पता चल जाता है वेयर यू आर लैकिंग. अगर आपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्म कर लिया, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, वेरी गुड डायरेक्शन. लेकिन अगर उसको मैचअप नहीं कर पाया, दैट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर. तो वो लैकिंग विक्स को फाइंड आउट करता है हमारा मैनेजर, उस पर काम करता है ऑन टाइम और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम अपना टास्क क्या करता है, अचीव करता है. अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये सब चीज़ें पॉसिबल है ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग. सो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड वन and find out the deviations if any. Planning, because it provides the predetermined goals, correct, against which the actual performance is compared. अभी मैंने बताया था आपको. So if any deviation found, managers can immediately take the controlling steps to fix it up. अगर कोई डेविएशन आपको मिलता है, कोई लैकिंग ब्रेक आपको मिलता है, तो आप इमीडिएटली स्टेप्स लेके, कंट्रोलिंग स्टेप्स लेके उनको क्या करते हो, फिक्स अप कर देते हो. Therefore, planning provides the basis for control. Controlling is also helps to maintain discipline into the organization. With the help of controlling आप क्या कर सकते हो, organization में proper discipline भी maintain कर पाते हो. Now the next point is it facilitates the coordination of all the activities of the different departments as shown into the diagram. एक हमारा HR डिपार्टमेंट है, एक परचेज है, एक सेल्स है, एक मार्केटिंग है, ठीक है, n नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं. लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल तभी होती है जब उसके सारे डिपार्टमेंट्स और सारे एम्प्लॉयज एक ही गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के टूवर्ड्स क्या करें, वर्क करें. करेक्ट है. सो प्लानिंग एक्ट एज अ बेस फॉर
बेस्ड टू कोऑर्डिनेशन बाय रिड्यूसिंग द ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय और हर एक डिपार्टमेंट के पास अपना सेट पाथ ऑफ एक्शन डिटरमाइंड होता है बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग जो हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स ने क्या की है, डिटरमाइन की है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती है ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड ऑफ द आइडियाज़। साउंड प्लानिंग इंटररिलेट ऑल एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छी प्लानिंग वही होती है जहाँ पे या जिसके हेल्प से सारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एक दूसरे को इंटररिलेट कर पाती हैं। करेक्ट है। अगर आपकी प्लानिंग साउंड नहीं होगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कम्युनिकेशन लैक हो जाएगा और जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना होगा इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस प्रॉफिट और इन द फॉर्म ऑफ सफरिंग लॉस। सो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स leads towards achieving the organizational goals, and it is possible when all the department work as per the plan and coordination is achieved। जब सारे डिपार्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे, करेक्ट है, वो प्लान जहाँ पे किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, वो प्लान जो एक्टिविटीज़ को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ऐसा प्लान, दैट मीन्स अ साउंड एंड इफेक्टिव प्लान। करेक्ट है। अगर आपके पास है तो आपके सारे डिपार्टमेंट, आपका हर डिपार्टमेंट आपके अल्टीमेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के टूवर्ड्स ही क्या करेगा, वर्क करेगा। सो प्लानिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन सेट करता है बिटवीन दी ऑल different activities and the different departments and the employees present into the organization। Planning facilitates the other management functions। other management functions मतलब कौन से functions हुए, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, फिर स्टाफिंग करना टू पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस फॉर द राइट जॉब। करेक्ट है। डायरेक्शंस पास ऑन करना, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना एंड एट द एंड उनको एवेल्युएट करना उनके परफॉर्मेंसेस को। करेक्ट है। ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन प्लानिंग सबका बेस है। अगर प्लानिंग नहीं है तो आगे की एक्टिविटीज़ होंगी ही नहीं। प्लानिंग नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजिंग किसके लिए करोगे, आप स्टाफिंग किसकी करोगे, क्योंकि हर चीज़ तो प्लानिंग से ही स्टार्ट होती है ना। हर चीज़ क्या होती है, प्लानिंग से ही स्टार्ट होती है। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन टुवर्ड्स अचीविंग दी इट्स गोल एंड दिस गोल्स आर डिटरमाइंड एट द प्लानिंग स्टेज ओनली। करेक्ट है। हमको पता है प्लानिंग का फर्स्ट स्टेज ही जो होता है, फर्स्ट स्टेप ही होता है जहाँ पे हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं। नाउ ऑल द अदर फंक्शंस व्हिच हैव बीन शोन इनटू द डायग्राम कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस द प्लान इज रेडी। आप कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कोई भी दूसरा फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक आपका ओवरऑल प्लान, ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन ना हो। करेक्ट है। सो प्रॉपर प्लानिंग लीड्स टू अचीव डिजायर्ड गोल्स इनटू द डिजायर्ड मैनर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आपकी प्लानिंग 100% फुल प्रूफ है, एक्यूरेट है, करेक्ट है, तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट टू अचीव द डिजायर्ड गोल इनटू द डिजायर्ड मैनर। एफिशिएंटली, इफेक्टिवली आप अपने डिजायर्ड गोल को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। Now the next point is it promotes the innovative ideas। innovation जो आप में बिल्कुल नहीं है, करेक्ट है, नहीं कुछ कुछ में है, ठीक है। सो प्लानिंग इज बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हमने पहले भी पढ़ा था, इट इज़ द फर्स्ट, फॉरमोस्ट, बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन गोल्स, फैक्ट्स एंड कंसिडरेट एस्टिमेशन। प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे रिलाई करता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेक्यूलेशन में स्पेक्यूलेशंस वर्कआउट नहीं करते हैं, सिर्फ अंदाज़ा नहीं, एक्यूरेट फोरकास्टिंग, एक्यूरेट अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। सो इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, it also involves the promotion of innovative ideas after critical thinking, and this innovative ideas are going to result into the attainment of goals, going to result into the attainment of goals। Planning is the most challenging activity for management as it guides all the future actions। करेक्ट है। प्लानिंग पे ही आपके आने वाले कमिंग फ्यूचर के सारे एक्शंस होते हैं, बेस्ड होते हैं। सो इट लीड्स टूवर्ड्स द ग्रोथ and prosperity of the organization। Planning leads towards the growth and prosperity of the organization by bringing the innovative ideas into the organization। जहाँ पे हमारे मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड बिटवीन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट।
करेक्ट है, मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे सिखाया था, देयर इज ऑलवेज, नो वन इज परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जब आपके पास वो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट होता है तो आप कंटिन्यूसली डेवलपमेंट के टूवर्ड्स क्या करते हो, एक एक स्टेप्स आगे बढ़ाते हो। करेक्ट है, जब आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हो तो यू हैव टू कम अप विद द इन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप इनोवेटिव हो, अगर आप एफिशिएंट हो, करेक्ट है, अगर आपकी थिंकिंग इनोवेटिव है तो यू विल गोइंग टू कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। करेक्ट है, सो प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट करता है इन द माइंड ऑफ मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज। करेक्ट है, ऑल्दो आपके पास सेट कोर्स ऑफ पाथ ऑफ एक्शन है, but they are not rigid, they are flexible as and when required, depending upon the situation हमारे managers उनको क्या करते हैं, mold करते हैं, उनको change कर सकते हैं। correct, so here we are done with the few points of the importance of planning which is given in your textbook. Now let's just see the conclusion regarding the importance of planning. So planning plays an important role इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होती। एक टास्क कंप्लीट हुआ, अगले टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से प्लानिंग स्टार्ट करोगे। सो ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये कंटिन्यूस इन नेचर होता है। करेक्ट है, इन द सेम वे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ के हर पॉइंट पे इम्पॉर्टेंट होती है, पर जैसा कि हम जानते हैं फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल है और बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें हम डील करते हैं वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है, ठीक है, स्टैटिक नहीं होता। सो प्रॉपर प्लानिंग लीड्स टू मिनिमाइज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। अगर आप प्रॉपर प्लान के साथ एनवायरनमेंट में एंटर करते हो तो रिस्क नहीं होगा ये तो नहीं बोल सकती, पर ये बोल सकती हूँ कि आप उस रिस्क को बेस्ट पॉसिबल वे में टैकल ज़रूर कर पाएंगे। सो इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल प्लानिंग, इंटेलेक्चुअल मतलब हर पॉसिबल एलिमेंट को कंसीडर करने के बाद बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स। लॉजिकल मतलब ऐसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना जिनको ह्यूमनली अचीव करना पॉसिबल हो। करेक्ट है, इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल प्लानिंग इज ऑलवेज नीडेड फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एनी इन एवरी काइंड ऑफ organization. So today here we have covered up the importance of planning with the help of 10 different points. We have also seen the conclusion. Here I rest my lecture for today. Just go through with the lecture. Any doubts and queries, please feel free to call back or text me out. Thank you.